قبیلے میں orhan صاحب آ رہے ہیں। سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ orhan گھوڑے سے اتر کر خلیل کے پاس آتا ہے۔ خلیل خوش آمدید کہتا ہے۔ orhan کہتا ہے شکریہ خلیل، کیا حوال ہیں؟ خلیل بتاتا ہے جیسے آپ نے کہا تھا، سپاہی راستے میں روانہ ہو گیا حضور۔ انشاءاللہ وہ برسا کے رومی عوام کے دل میں ٹھنڈک اور ساروز کے دل میں انگارے اتاریں گے۔ orhan کہتا ہے خلیل، یہ تدبیر ہمارے لیے برسا کے دروازے کھولے گی۔ آئے کرتا کر کہتا ہے حضور جرگاہ بلایا گیا۔ خلیل کہتا ہے حضور ایک اور خبر ہے، شہنشاہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکا ہے، وہ ازنک جائے گا۔ orhan کہتا ہے وہ یوں ہی بتھینیا نہیں آتا ہے نا خلیل؟ خلیل کہتا ہے آپ درست فرما رہے ہیں حضور۔ orhan کہتا ہے تم اپنے کانوں سے ہر چیز سن لیتے ہو خلیل۔ خلیل کہتا ہے ہر چیز سن لیتا ہوں، بس اپنے بیٹے کی آواز نہیں سن پاتا۔ orhan کہتا ہے خلیل ہم تمہارے بیٹے کو ڈھونڈیں گے، تمہیں تمہارا الیاس مل جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، فکر مت کرو۔ اور خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر خیمے کے دروازے کے سامنے رکتا ہے۔ آئیکر چاوش دروازہ کھولتا ہے۔ خیمے کے اندر سرداران سرگوشیوں میں مصروف ہیں۔ آئیکر چاوش اعلان کرتا ہے دستور orhan صاحب۔ سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ orhan صاحب اندر آتے ہیں اور سب کو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ سب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ orhan سب کو بیٹھنے کا کہتا ہے اور خود بھی بیٹھ جاتا ہے اور جرگہ شروع کرتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ جو کہے تو ہو جاتا ہے، جو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، جو ہمیں فتح کا نہیں مہم کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ہمارا یہ جرگہ مبارک ہو سرداران۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اگر فتح کو مضبوط نہ کیا جائے تو شکست جلدی آ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بہت سے قلعے فتح کیے، بہت سے علاقے زیر نگین کیے، لیکن ہماری فتح مضبوط نہیں ہوئی۔ جو بات میرے ذہن کو مشغول کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فتوحات کو پابند کیسے بنائیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا ہر ریاست کا مسئلہ یہی نہیں روتا حضور؟ کتنے ہی فاتحین گزرے لیکن ریاستیں قائم نہ رہ سکیں۔ orhan کہتا ہے میں بھی بالکل یہی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا انجام بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے درد کی دوا نہ ڈھونڈ سکے تو ہم فنا ہو جائیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے تو پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے حضور؟ orhan کہتا ہے ہمارے مسائل تو گننے سے ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا عزم اور ہماری کوشش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمیں فوری حل کرنا ہوگا۔ جرکتائی کہتا ہے خیر ہو حضور۔ orhan کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے لیکن وہاں آبادی کو مضبوط نہیں کیا۔ ہماری آبادی ابھی اس رفتار سے نہیں بڑھی۔ ہم تیزی سے اناتولیہ اور ترکستان سے اپنے بھائیوں کو اپنے فتح کردہ علاقوں میں آباد کرنا ہوگا۔ تیمور بوغا کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم ان قبیلوں کو اپنی زمینوں پر کیسے لائیں گے؟ آوجی کہتے ہیں ہم مان لیا، لے بھی آئے تو مقامی لوگ کیا کہیں گے؟ orhan گہری سانس لے کر کہتے ہیں ہم ایک بہت بڑی مہم شروع کریں گے، ہم محصول میں رعایت دیں گے، ہم قبیلوں میں سے ایک کر کے بات کریں گے، ہم انہیں اپنے خوابوں میں شریک کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ ایک سردار کہتا ہے اگر تیمور تاش نے مخالفت کی تو؟ بوران کہتا ہے اس شیطان نے ابھی سے اپنے جال بچھانا شروع کر دیے ہوں گے۔ orhan کہتا ہے اللہ چال چلنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بوران مسکراتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم ڈٹے رہیں اور سچے رہیں۔ سب کہتے ہیں واللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے۔ سب سے پہلے ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہوگا کہ یہ ریاست ایک عادل ریاست ہے۔ اب میں آپ کو اپنی ریاست کے انصاف کا نظریہ بتاتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنے طور پر انصاف تلاش نہیں کرے گا، حق پر ہو یا حق، تلوار کھینچنے والا، سیدھا ہو یا ٹیڑھا، خون بہانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انصاف کرنا صرف اور صرف قاضیوں کا کام ہوگا۔ ایناگول یعنی شہر، سغود اور تمام علاقوں میں اگر کوئی یتیم رویا، اگر کسی ماں کے دل کو دکھایا تو ریاست فوراً وہاں موجود ہوگی۔ سب جان لیں گے قاضی اپنے فرائض پر مامور ہیں، غریب ہوں یا امیر، یا علماء سپاہی ہوں یا سرداران، بلا تفریق انصاف کے سامنے برابر ہوں گے۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے orhan اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہتے ہیں یہ ہے ہماری ریاست کا راستہ۔ پوری دنیا کہے گی کہ انسانیت جس ریاست کی تمنا کرتے تھے یہ وہی ریاست ہے۔ اس وقت 72 قومیں جوک در جوک ہماری سرحدوں پر آئیں گی، ہمارے سائے میں پناہ لیں گے۔ یہ انسانیت کے انصاف کا گھر ہوگا۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، خوب کہہ رہے ہیں orhan صاحب، آپ ہمارا سینہ چوڑا کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑے خواب ہمیشہ مجھے ڈراتے ہیں، یہ بڑے دشمنوں کو ہماری طرف کھینچ لائیں گے۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سگود کے بازار میں فاطمہ خاتون چہل قدمی کر رہی ہیں۔ سب لوگ فاطمہ خاتون کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شفا دے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں شکریہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ وہ آگے آتی ہیں اور فلادی اس کپڑا پھیلا کر کہتا ہے یہ کپڑا تمہارے خوبصورت چہرے پر بہت جچے گا فاطمہ خاتون۔ فاطمہ ادھر ادھر دیکھ کر کہتی ہیں تمہارا یہاں کیا کام ہے آگ چورا؟ فلادیوس کہتا ہے سب کپڑا فروشوں کے بازار میں کیوں نہ ہوں؟ مسکرا کر کہتا ہے میں تاجر ہوں، یہ کپڑا دیکھ کر مجھے تمہاری یاد آ گئی، اصل میں بس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔
फातिमा कहती है, क्या तुम्हारा कभी संजीदा होना मुमकिन है? फ्लादियो संजीदा होकर कहता है, फातिमा खातून, ये कपड़ा तुम्हारे लिए है। अगर तुम मेरी तरफ से इसे मेरी शुक्रगुजारी का तोहफा समझकर कबूल कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कहता है, कैसा लगा? क्या अब काफ़ी संजीदा हूँ? फातिमा खातून मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी नीयत क्या है? फ्लादियुस कहता है, तुम हर लफ्ज़ के पीछे नीयत क्यों ढूंढती हो फातिमा खातून? क्या तुम्हारा होना वाकई इतना मुश्किल है? क्या तुम कभी कभार बेलगाम घोड़ों की तरह नहीं भाग सकती, बगैर सोचे समझे? फातिमा कुछ सोचकर मुंह फेर कर कहती है, मैं वो नहीं करती जो मेरा दिल चाहता है, बल्कि वो करती हूँ जो मुझसे तवक्को की जाए। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। फ्लादियुस कहता है, दुरुस्त है, तुम्हारी पहचान उस्मान सरदार की बेटी के तौर पर है। काश मैं एक दिन फातिमा से सिर्फ फातिमा से बात कर सकता, तमाम अलकाबात भुलाकर, और उस दिन तुम्हारा मुझसे मिलना भी मुमकिन होता। फातिमा फ्लादियुस की आंखों में देखती है, फिर कहता है, संजीदगी से, तुम्हारा जख्म कैसा है? लोग कहते हैं कि तुम जख्मी हो गई थी। फातिमा कहती है, जख्म इतना शदीद नहीं था। फ्लादियुस कहता है, वो बदकार शख्स कौन था जिसने तुम्हारे साथ किया? मुझे बता दो, वो आज से मेरा बड़ा दुश्मन है। फ्लादियुस फातिमा एतमाद से कहती है, फ्लादियुस पर शुबा है कि वो फ्लादियस ही था, वक्त आने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। फ्लादियुस कहता है, वो अब से मेरा भी दुश्मन है। तुम्हारा भाई औरहान सरदार तख्त पर बैठ गया, अब वो बरसा के लिए रहम नहीं दिखाएगा? फातिमा कहती है, मेरे भाई बरसा के लोगों पर रहम करते हैं आगचोरा, इसलिए उन्होंने शिफा के वसाइल बरसा भेजें। ये कहकर फातिमा कहती है कि मुझे अब जाना होगा। इस पर फ्लादियुस कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मुलाकात कर सकता हूँ। फातिमा ये सुनकर मुस्कुराती है, फिर मुड़कर कहती है, अपने कपड़े उठाकर किसी दिन मेरे कबीले में आ जाना, शायद वहां तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाए। फातिमा मुड़ते हुए मुस्कुराती है, फिर एक बार मुड़कर देखती है। फातिमा के जाने के बाद फ्लादियुस सोचता है, औरहान चालाक आदमी, तुम्हारा इरादा बरसा के लोगों को धोखा देना है। हाँ, इधर इसका सिपाही खबर पकड़ाता है और बताता है बादशाह इज़्निक आ रहा है। अऊजी कहता है, दुश्मन ही वाहिद मसला नहीं, खजाना मजबूत होना चाहिए ताकि ये सब लोग खा सकें। मेरे सरदार, बोरान कहते हैं, हमें तो अल्लाह खिलाता है। अऊजी साहब फिक्र न करो। जिरकुतई कहता है कि अगर मैं दुश्मन से डरता तो मैं सिर्फ एक चरवाहा ही होता। सरदार शाहीन शाह कहता है, समझ गया, तुम मुझ पर हमारे ही कबीले की खैरख्वाही का मलाल डालते हो। क्या माजरा है सरदारान? इस पर ओरहान कहता है, तुम्हारी फिक्र ही मेरी फिक्र है सरदारा। अगर हम इस मरहले को दुरुस्त न चला सके तो हमारे अपने ही सीने में एक बड़ी आग भड़क उठेगी। मेरे सरदारान, जान लो कि ये बड़े बड़े जानबाज अपने फतूहात को कायम ना रख सके तो तारीख से मिट गए। अगर हम एक कदम भी पीछे हटे तो नाबूद हो जाएंगे। ये हमारा पहला कदम होगा। तमाम तुर्कमान कबाइल के पास जाओ और उन्हें खबर दो। आयकुर्त, वो कहता है, जी हुजूर। खलील दावतनामा लिखवा कर पहुंचाएगा। आयकुर्त कहता है, जैसा आपका हुक्म। बोरान कहता है, हुजूर, ओगुस कबाइल इस काफिर तैमूरताश की इजाज़त के बगैर हमारी सरजमीन पर कैसे आएंगे? ओरहान कहता है, शाहीन शाह सरदार की वजह से। शाहीन शाह चौंक जाता है। ओरहान कहता है, शाहीन शाह सरदार, तुम तैमूरताश के पास जाओ और उससे कहो कि ओगुस कबाइल को हमारी तरफ रवाना करे। तो ओरहान कहता है, क्या आप समझते हैं कि वो मान जाएगा मेरे सरदार? शाहीन शाह खुशी से कहता है कि ये मामला तो मुझ पर छोड़ दो। जैसे आपका हुक्म हुजूर, मैं फ़ौरन रवाना होता हूँ हुजूर। ओरहान कहता है, शुक्रिया। फिर ओरहान कहता है, एक और बात भी करनी है। खबर मिली है कि बादशाह इज़्निक भी पहुँचने वाला है। जेरकुतई कहता है, इसका मतलब है कि जंग हमारे दरवाजे पर है हुजूर। वो बोरसा के लिए आ रहे हैं। ओरहान कहता है, बोरसा गिरने के करीब है। मैंने बोरसा की तरफ मदद भेजी है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। अऊजी कहता है, आपने मदद क्यों भेजी है मेरे सरदार? ओरहान कहता है, मेरे सिपाही उधर जाकर मदद करेंगे। ये उन लोगों के लिए शिफा साबित होगी जो बोरसा में बेबस हो चुके हैं। जेरकुताई खुशी से कहता है, हक आया और बातिल मिट गया। अलाउद्दीन कहता है, मेरा सरदार ओरहान लोगों के दिल जीतेगा और अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी भड़काएगा। शाहीन शाह कहते हैं, आपकी बदौलत जंग में एक नया तरीका मुतारिफ हुआ है ओरहान सरदार। और बोरान हैरानी से कहता है, वो कौन सा तरीका है शाहीन शाह सरदार? शाहीन शाह सरदार कहता है, रहम करने वाली फतह। इस पर सब मुस्कुराते हैं। मैं भी आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ओरहान कहता है, अगर तुमने मुझे मुबारकबाद दिया तो मुझे यकीन है सारोज़ तबाह हो जाएगा। शाहीन शाह खुलकर मुस्कुराता है और सारे सरदार भी। ओरहान कहता है, जेरकुतई साहब, क्या हमारी फ़ौज लड़ने को तैयार है? जेरकुतई कहते हैं, पूरी तरह तैयार है मेरे सरदार। जहाँ आप कहेंगे हम सूरज की तरह उभरेंगे अल्लाह के हुक्म से। ओरहान कहता है, हम वो कौम नहीं जो बेमकसद खून बहाना पसंद करती है, बल्कि जो हमें नुकसान पहुँचाएगा हम उसकी सांस की डोरी काट देंगे अल्लाह के हुक्म से। वक्त आ गया है कि सर बुलंद किया जाए। वक्त आ गया है कि एक बाबरकत रियासत बनने की तरफ कदम बढ़ाया जाए। फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। सब कहते हैं, इंशाअल्लाह मेरे सरदार। भाई सिपाही मदद लेकर जा रहे हैं। बालाबान कहता है, मैं 1000 साल भी सोचता तब भी बरसा में इलाज भेजकर
लोगों के दिल जीतने का ख्याल नहीं आता। धमरुल हंसता है, हाँ, तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता भी नहीं भाई। बालाबान कहता है कि तुम आलिम हो और हम नहीं, तुम जानते। भाई धमरुल मुसलसल हंस रहा है। बालाबान तब कर कहता है, गोया जैसे तुम सोचते। अचानक कांतुर अली काफिला रोक देता है। धमरुल कहता है, क्यों रोका है? अब्दुर्रहमान कहता है, खामोश रहो, कुछ अजीब है। कांतुर अली शख्स से देख रहा है और हान जरगे के बाद मुताले में मशरूफ हैं। मालून खातून अंदर आती हैं। मालून आकर कहती हैं, बेटा जरगा खत्म हो गया तो सोचा मैं तुमसे मिल लूं। और हान कहता है, आपने अच्छा किया वालिदा, मैं आपसे और बाबा से मिलने आने वाला था। मालून मुस्कुराकर कहती हैं, तुम्हारे बाबा सुलेमान और कासिम को शिकार पर ले गए हैं। हमें बच्चों की तरबियत इस वक्त करनी चाहिए जब वो छोटे हों। वो शिकार और जरगे का तजर्बा करके उनके अखलाक और कवानीन के बारे में अपने बाप और दादा से सीखेंगे। वो बाद में ये चीजें नहीं सीख सकते। और हान देखकर कहता है, लगता है आप कुछ छुपा रही हैं, बताएं। मालून खातन बताती हैं, फातिमा और हलीमा के रिश्ते के उम्मीदवार आए हैं। शाहरुख खान साहब और आबिदीन औलू साहब की खातून अपने बेटों के साथ यहाँ हैं। वो अब आराम कर रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता है और अचानक दुश्मन घात लगाता है और सिपाही जमीन से निकलना शुरू हो जाते हैं। अचानक एक वार से एक सिपाही मारा जाता और घोड़ा गिर जाता है। फिर वो मजीद हमला करते हैं। अचानक सिपाही पीछे हट जाते हैं। एक सिपाही हंसता है, सिपाही भाग गए हैं, अब ये काम बहुत आसान हो गया, गनीमत अब हमारी है। वो कपड़े खींचते हैं। नीचे से अब्दुर्रहमान कांतुर अली निकलते हैं। दूसरे चकड़े पर बालाबान धमरुल निकलते हैं और हमला कर देते हैं। जंग छिड़ जाती है। अब्दुर्रहमान कांतुर अली खूब जंग लड़ते हैं। बालाबान भी अपनी तलवार का हक अदा कर रहा है। धमरुल भी सख्त रवैया रखा हुआ है और हक अदा कर रहा है। मुस्तफा की तलवार भी खूब चल रही है और एक एक करके दुश्मन को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब्दुर्रहमान एक सिपाही को पकड़कर उसका गला काट देता है। दूसरे सिपाही भी मारने में मशरूफ हैं। सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद बालाबान कहता है, ये कौन लोग थे? ये कुत्ते मौत के प्यासे हैं। धमरुल कहता है, वो इज़्ने के गवर्नर के सिपाही होंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन बदमाश थे? चलो तैयार हो जाओ, तफरी खत्म हो गई, घोड़े लाओ और चलो। सिपाही चल पड़ते हैं। उधर खैमा में नीलोफर खातून दाखिल होती हैं और कहती हैं, वालिदा आपने खबर भेजी है, खैरियत? मालून खातून कहती हैं, ये कबीला और सरदारी रस्म व रिवाज के बगैर नहीं चल सकती, ये जान लो, इसलिए मैं तुम्हें और हान साहब के सामने कहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और हान कहता है, नीलोफर कहती है, कवानीन और रस्म व रिवाज मैं नहीं तोड़ती और हान साहब आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मालून खातून कहती है, तुम्हें हलीमा और फातिमा के उम्मीदवार पसंद नहीं है, तुम मेरी बेटियों के दिमाग खराब कर रही हो। नीलोफर कहती है, वो मेरी बहनों से बढ़कर हैं, मैं जानती हूँ वो प्यार करें और उनसे कोई प्यार करे खुशी से अपने घर में रहें, और उन्हें मैं नहीं चाहती कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करने पर मजबूर हों जिसे वो नहीं जानती हैं। इसमें गलत क्या है? और आन कहता है, मेरी माँ इस बारे में ठीक कहती हैं नीलोफर, इसमें नेक मामलात में तासुब नहीं करना चाहता, हम दावेदारों को जानते हैं, और अगर मेरी बहनें चाहती हैं तो। नीलोफर कहती है, अगर वो नहीं चाहती। और हान साहब? मालून कहती है, मसला सिर्फ वही नहीं है, हम अपने फ़राइज़ पर आते हैं। बरसों से मुकर्रर चरवाहों की तनख्वाहों में तुमने ख़जाने से इजाफी सोना उन चरवाहों को दिया, अगर ये इसी तरह चलता रहा निज़ाम बर्बाद हो जाएगा। नीलोफर कहती है, सर्दियां सख्त हो गई, मैंने कहत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाई हैं। मलहून खातून कहती हैं, इस कबीले ने कई सख्त सर्दियां देखी हैं, अगर हम हर बार डर कर ख़जाना बांटने लगें तो हम क्या मुनजिम हुए? क्या ऐसा नहीं है उरहान साहिब? उरहान कहता है, इस मामले में नीलोफर दुरुस्त है, हमारी आबादी रोज़ रोज़ बढ़ रही है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना अच्छी बात है। मलहून खातून कहती हैं, क्या रिस्क के खौफ से आसान रास्ता इख्तियार करना अच्छी बात है? कोई भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और इंशाअल्लाह मैं गलत होंगी। बेटा खलील आकर इजाज़त चाहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? उरहान कहता है, नहीं खलील। खलील हैरान हो जाता है और हान इजाज़त लेकर बाहर निकल जाता है। नीलोफर कहती हैं, हमने जो ख़जाने से खर्च किया है उसे वापस भी लाएंगे वालदा। मलहून कहती हैं, कबीले में ये करें वो करें, इस पर हुकूमत ऐसा नहीं हो सकती। खलील पूछता है, हुजूर खैरियत, आपका रंग बदला हुआ है। उरहान कहता है, मैं एक ऐसी जंग में दाखिल हो गया हूँ जो जीत नहीं सकता। खलील समझकर मुस्कुराता है।